Hi, today we start with partnership final account 12th standard. You have done proprietorship final account in FIGC. What is partnership as per Indian Partnership Act 1932? Partnership, it is a relationship between persons who have agreed to share profit of a business carried on by all or any of them acting for all. So in case of partnership final account, what is given in the problem? As usual, you know that in final account what is given in the problem? Trial balance as on last date is given in the problem. What is our last date? Financial year end is always 31st March. So trial balance as on 31st March is given in the problem. And adjustment are given in the problem. And what we have to prepare in 12th standard partnership final account? First account is a trading account. As usual, you know that trading account में क्या क्या आता है? Factory expense, that is direct expense on debit side and factory income on credit side. Okay, तो first account आपको क्या बनाना है? Trading account. Second account यहाँ पे पहले से मैंने बना दिया है profit and loss account. Okay, particular inner column, outer column rupees and particular inner column, outer column rupees. Debit side, credit side. Okay. In this year, you have to prepare extra one more account that is called partners capital account. Okay. Now here in this problem, there are two partners, Sriram and Sridhar. So what is your column? Particular name of the partner. This is debit side. Particular name of the partner, credit side. ये extra account बनाने का है 12th standard में partnership final account. And last में balance sheet as on particular date. Left hand side में liability side and right hand side is the asset side. So what are the accounts required in partnership final account? Trading account. Second account is a profit and loss account. Third account is a partners capital account. And fourth account is balance sheet. Okay. Now, what is given in the problem? Trial balance is given in the problem. So how to start partnership final account? First step, transfer each and every item of given trial balance to any of this account. Trial balance one item, one effect and adjustment one item, two effect. ये याद रखना है आपको. ट्रायल बैलेंस की एक एक आइटम का एक ही इफेक्ट जाएगा एंड एडजस्टमेंट के एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट जाएंगे. ओके, तो आपको इतना समझ गया होगा. नाउ वेयर टू ट्रांसफर ट्रायल बैलेंस आइटम. मैंने आपको पहले से नोट्स दिया है. ओके, कुछ नोट्स में लिखा भी हुआ है गाइडलाइन फॉर फाइनल अकाउंट. लेकिन आज के लेक्चर में मैं इस क्वेश्चन को बेस बना के वो पूरा फाइनल अकाउंट की गाइडलाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. नाउ फर्स्ट स्टेप, वेयर टू ट्रांसफर ऑल दिस ट्रायल बैलेंस आइटम. Now in case of trial balance, बीच में मैं एक कुछ डायलॉग बोलूंगा, वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को के लिए काम आएगा. What is trial balance? Trial balance is a list of ledger balance. ये आपका fill in the blanks भी हो सकता है. Trial balance is a list of ledger balance. Now this is a debit side and this is a credit balance, that is credit side. Now debit side item, okay, are divided into two parts: expenses and assets. एंड क्रेडिट साइड आइटम को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इनकम एंड लायबिलिटी. नाउ लेट अस एक्सप्लेन इन डिटेल. ट्रायल बैलेंस आइटम्स आर डिवाइडेड इनटू 7 कैटेगरी. जरा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं. ट्रायल बैलेंस के आइटम को 7 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है और उस कैटेगरी के नाम मैं यहां पे बोल रहा हूं. ठीक है. नाउ ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड मैंने पहले ही बताया, या तो एक्सपेंस होता है या एसेट्स होता है. ठीक है. नाउ एक्सपेंस इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस एंड ऑफिस एक्सपेंस. तो जो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस होगा उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने का है. ओके. नाउ फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. व्हाट आर दोस फैक्ट्री एक्सपेंस जो मैंने नोट्स में आपको दिया भी है, आपको पीडीएफ फाइल भी मिलेगा. ओके. तो फर्स्ट मैंने लिखा है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड व्हाट आर द अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस? वेजेस, रॉयल्टी, ऑक्ट्रॉयल्टी, carriage inward, all these are the example of factory expenses and direct expense. तो ये जो डेबिट साइड में लिखा होगा उस आइटम में से जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस आइटम होगा, दिस इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. इतना आपको क्लियर हो गया होगा. ओके. नाउ
दूसरा कौन से एक्सपेंस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफिस एक्सपेंस। ऑल ऑफिस एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आइटम बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसका लेंथ भी बड़ा है, ये आप फुल पेज पे भी बना सकते हैं। दिस इज 75% पेड। नाउ ऑफिस एक्सपेंसेस आर आल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, लिस्ट इज गिवन इन योर दिस गाइडलाइन फॉर फाइनल अकाउंट, जो शीट दिया उसमें मैंने पूरा दे दिया है। नाउ व्हाट आर द फैक्ट्री एक्सपेंस के बाद जो ऑफिस एक्सपेंस आइटम है, ऑफिस एक्सपेंस में सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, रेंट, बैड डेट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और बहुत सारे लॉट ऑफ आइटम है जो हम लोग ने आपको लिस्ट में दिया हुआ है। नाउ अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस इज ट्रांसफर टू, बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ऑफिस एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। मतलब आपने ये देखा, ये जो डेबिट साइड आइटम है या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, और कौन सा मैंने बोला था, एक्सपेंस नहीं होगा तो वो एसेट्स होगा। तो एसेट साइड कहां पे, लास्ट में, बैलेंस शीट एसेट साइड। दिस इज कॉल्ड डेबिट एंड दिस इज कॉल्ड क्रेडिट इन केस ऑफ बैलेंस शीट। नाउ व्हाट आर द लिस्ट ऑफ एसेट्स? सी दैट लिस्ट ऑफ एसेट्स क्या क्या हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ऑल दीज आर एसेट्स। इवन द क्लोजिंग स्टॉक इज आल्सो एसेट्स, डेटर्स, ये सबको एसेट्स बोला जाता है। ओके, तो डेबिट साइड आइटम आपने ध्यान से सुना होगा मैंने क्या क्या बोला है, या तो फैक्ट्री एक्सपेंस होता है, या ऑफिस एक्सपेंस होता है, या एसेट्स होता है। ठीक है, तो डेबिट साइड आपके पास कौन कौन सा डेबिट साइड है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो। ट्रेडिंग अकाउंट, दिस इज अ लेजर अकाउंट, दैट्स व्हाई दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज आल्सो डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। जो लेजर अकाउंट होता है उसमें टू एंड बाय लिखा जाता है। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस इज आल्सो लेजर अकाउंट, इसका स्पेशल ट्रीटमेंट है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड बैलेंस शीट में उल्टा होता है, लायबिलिटी इज क्रेडिट एंड एसेट इज डेबिट होता है। ओके, नाउ अगेन रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट स्टेप क्या है, वी हैव टू ट्रांसफर ऑल दिस ट्रायल बैलेंस आइटम, दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप। नाउ आज के लेक्चर में मैं बता रहा हूं फिर से कि ट्रायल बैलेंस आइटम्स आर डिवाइडेड अंडर 7 कैटेगरी, जिसमें से मैंने 3 कैटेगरी आपको बता दिया है, लेकिन फिर से बता रहा हूं। फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री इनकम, ऑफिस एक्सपेंसेस is debited to profit and loss account. Office expenses are also called indirect expense. ध्यान देना, okay? And here office income is credited to profit and loss account. Now asset side में अगर आप देखेंगे तो मैंने assets बोला, लेकिन इसमें assets में personal account debit balance and real account debit balance भी जाता है। Now what are personal account debit balance? For example, debtor is a personal account debit balance. Loan to लिखा होगा तो दैट इज कॉल्ड लोन टू समबडी, दैट इज आल्सो पर्सनल अकाउंट डेबिट बैलेंस। नाउ रियल अकाउंट डेबिट बैलेंस का लिस्ट मैंने पहले ही बता दिया। ओके, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ऑल दीस एसेट्स आर कॉल्ड रियल अकाउंट डेबिट बैलेंस। तो पर्सनल अकाउंट डेबिट बैलेंस आइटम, रियल अकाउंट डेबिट बैलेंस आइटम, एंड बट पर्सनल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू लायबिलिटी साइड। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके, लोन फ्रॉम बैंक अगर आया तो दिस इज लायबिलिटी। तो आपने नोटिस किया होगा, अगेन रिपीट करता हूं, ट्रायल बैलेंस आइटम्स आर डिवाइडेड अंडर 7 कैटेगरी। फैक्ट्री एक्सपेंसेस इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री इनकम में ये मेन इनकम आता है, सेल्स इज अ फैक्ट्री इनकम एंड सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, दैट इज द फॉर्मेट। सेल्स जो भी फिगर होगा उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करना है, आउटर कॉलम में आपको लिखना है। नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस इनकम, कितना हो गया, 4 आइटम, फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री इनकम, ऑफिस एक्सपेंस एंड ऑफिस इनकम। ओके, नाउ और 3 आइटम कौन सा है, पर्सनल अकाउंट डेबिट बैलेंस, रियल अकाउंट डेबिट बैलेंस एंड हियर पर्सनल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। अभी यही बात मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बता रहा हूँ। जस्ट लाइक ये क्वेश्चन नंबर 1 अगर हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट आर गिवन इन द प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप क्या मैंने बताया, ट्रांसफर ईच एंड एवरी आइटम ऑफ गिवन ट्रायल बैलेंस। ओके, ट्रांसफर करते समय आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए ये जो लिस्ट ऑफ आइटम है वो कहां पे ट्रांसफर करना है। इसके लिए मैं आज के लेक्चर में स्पेशल यहाँ पे लिखता हूं, आप भी अपने प्रॉब्लम पे पेंसिल से लिख सकते हो। ओके, नाउ फर्स्ट आइटम कौन सा दिया है, परचेज। परचेज इज फैक्ट्री एक्सपेंस, दिस इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो यहाँ पे मैं रेड पेन से आपको दिखाई देगा, इसके लिए मैं
ट्रेडिंग अकाउंट टी लिख देता हूँ, ओके, टी आर, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। जब हम प्रॉब्लम अभी स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में, तब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अभी से। डेटर, डेटर इज क्या है बोलो, एसेट्स, डेटर इज एसेट, तो दिस इज ट्रांसफर टू एसेट साइड। एसेट साइड मींस बैलेंस शीट, एसेट साइड आपको मालूम है कहां पे ट्रांसफर करना है। ओपनिंग स्टॉक इज ऑलवेज फर्स्ट आइटम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। लेक्चर को ध्यान से सुनना, बोर नहीं होना, क्योंकि अकाउंट्स का लेक्चर है, 1 घंटा आपको कंसंट्रेट करना है, वेटेज इसका ज्यादा है इस टॉपिक का, ओके। नाउ ओपनिंग स्टॉक इज ऑलवेज फर्स्ट आइटम, तो ये कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ओके। नाउ वेजेस, वेजेस इज आल्सो व्हाट, फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस बोला तो ट्रेडिंग अकाउंट इज आल्सो ट्रांसफर टू wages is also transferred to trading account debit side. Next item is a salary. Salary is expense है कि assets है? No doubt salary paid is always expense, but salary is not factory expense. This is not direct expense. Salary is indirect expense, that is called office expense. So this is transferred to profit and loss account. P लिख देता हूँ या PL लिख देता हूँ, ठीक है? Now next item is a land and building. आपको जो नोट्स दिया है उसमें भी देख सकते हो, ओके, या इस स्लाइड को पॉज करके भी बराबर ध्यान से देख सकते हो। नाउ लैंड एंड बिल्डिंग इज क्या है, एक्सपेंस है कि एसेट्स है, तो नो डाउट आप सब लोग बोलेंगे एसेट्स है, तो दिस इज ट्रांसफर टू एसेट साइड। यहाँ पे मैंने ए लिख दिया है, जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय स्पीड में कर सकेंगे। नेक्स्ट आइटम है प्लांट एंड मशीनरी, दिस इज एक्सपेंस है कि एसेट्स है, तो दिस इज प्लांट एंड मशीनरी इज आल्सो एसेट्स, दिस इज नॉट एक्सपेंस, तो दिस इज ए लिख दिया मैंने यहाँ पे। फर्नीचर बोलो एक्सपेंस है कि एसेट्स है, तो आप फिर से बोलेंगे दिस इज आल्सो एसेट्स, दैट इज ऑल दिस आइटम, दिस 3 आइटम्स आर ट्रांसफर टू एसेट साइड, ओके। अभी वी हैव टू ट्रांसफर सिखा रहा हूं, मैंने अभी तक ये नहीं बोला हाउ टू ट्रांसफर। वी हैव टू ट्रांसफर मतलब कहां पे जाएगा ये बता रहा हूं, बट इनर साइड में लिखना है वो फिगर के आउटर साइड में लिखना है, दैट इज डिपेंड अपॉन एडजस्टमेंट। जस्ट अभी माइंड सेट करके रखो, वी हैव टू ट्रांसफर। नाउ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट इज क्या है, एक्सपेंस है कि एसेट्स है, क्योंकि जब डेबिट साइड आइटम को मैं क्या बोलता हूं, या तो एक्सपेंस होगा या एसेट्स होगा, ओके। नाउ एडवर्टाइजमेंट इज आल्सो एक्सपेंस है। नाउ एक्सपेंस है तो एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस है, फैक्ट्री एक्सपेंस है कि ऑफिस एक्सपेंस है, तो नो डाउट 100% आपको सबको मालूम है दिस इज ऑफिस एक्सपेंस, तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखता हूं। नेक्स्ट आइटम है बिल्स रिसीवेबल, ओके, इस साल आपको टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे। नाउ बिल्स रिसीवेबल, नाउ दिस इज कॉल्ड एक्सपेंस है कि एसेट्स है, बिल्स रिसीवेबल मींस अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम पार्टी या कस्टमर, तो अमाउंट रिसीवेबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक में फुल डिटेल में आएगा, दिस इज एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल इज एसेट्स। नाउ इंश्योरेंस, व्हाटएवर इंश्योरेंस हियर गिवन, दिस इज इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू द कंपनी, दैट्स व्हाई दिस इज एक्सपेंस। एंड एक्सपेंस बोला तो आपकी नजर या तो इधर जानी चाहिए या इधर जानी चाहिए, बराबर ध्यान से देखो। एक्सपेंस होगा तो या तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा, तो ये क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं पीएल, ओके। नेक्स्ट आइटम है ड्राइंग। इन एफआईजेसी याद करो आप ड्राइंग क्या करते थे, एफआईजेसी में ड्राइंग को कैपिटल में से लेस करते थे, बट दिस इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, हियर वी प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हेंस ड्राइंग ऑफ पार्टनर इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। ये ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा कैपिटल में से, बिकॉज कैपिटल बैलेंस व्हाटएवर गिवन इन द प्रॉब्लम this is transferred to capital account credit side by balance brought down। उस बैलेंस को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। लास्ट ईयर आप कैपिटल को कहाँ पे लिखते थे, डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिखते थे, बट इस साल पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट बनाया है, इसके लिए you have to transfer this capital balance to partners capital account credit side, because partners capital balance is credit balance, but whatever the drawing is given in the problem, this is transferred to partners capital account debit side। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखने का है। अभी ड्राइंग ऑफ पार्टनर श्रीराम एंड श्रीधर, here there are two partner, so this is transferred to partners capital account,
उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे विच साइड, डेबिट साइड। ओके, वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट आइटम इज कैश इन हैंड। कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, ऑल दीज आर एसेट्स, ऑल ऑफ यू नो दैट। एफआई जैसे आपने देखा ही है। नाउ नेक्स्ट आइटम इज रेंट। रेंट इज व्हाट, एक्सपेंस है कि एसेट्स है। आपने नोटिस किया होगा डेबिट साइड आइटम में मैं दो वर्ड हमेशा यूज कर रहा हूं, एक्सपेंस है कि एसेट्स है। और एक्सपेंस है तो डिसाइड करो वेदर इट इज अ फैक्ट्री एक्सपेंस है कि ऑफिस एक्सपेंस है। नाउ रेंट, रेंट इज अ ऑफिस एक्सपेंस। ओके, स्पेशल अगर आपको दिया होगा फैक्ट्री रेंट तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लिखना है, बट फैक्ट्री रेंट इज नॉट गिवन, दिस इज ओनली रेंट, so that's why this is transferred to profit and loss account debit side. Now power and fuel, power and fuel, this is what factory related expenses है and that's why this is transferred to trading account debit side. तो आपने नोटिस किया मैंने पहले से लिख दिया। ओके, तो आराम से आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा। Now let us start with credit side item. First item what is given, capital of Sriram and Sridhar 40,000 and 30,000. कैपिटल बैलेंस अभी अभी मैंने डिस्कस किया, कैपिटल बैलेंस इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट विच साइड, क्रेडिट साइड। ध्यान से देख लो, अभी मैं प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाला हूं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ऐसा लिखेंगे। हियर वी प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड देयर आर सम एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आफ्टर टेकिंग ऑल एडजस्टमेंट व्हाटएवर द फाइनल बैलेंस दैट इज ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, वो बाद में जाएगा। एंड दैट्स व्हाई व्हेनेवर इन द प्रॉब्लम only capital is given in the problem, then this is called fluctuating capital method. So there are two methods, fluctuating capital method and fixed capital method. तो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी फिर से हिंदी में बोलता हूँ। ओके, अगर प्रॉब्लम में कैपिटल अकाउंट दिया होगा प्रॉब्लम में तो उसको क्या बोला जाता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बट इन द प्रॉब्लम इफ करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर इज आल्सो गिवन, दैट मींस सपोज यहाँ पे ऐसा लिखा है करंट अकाउंट ऑफ श्रीराम एंड श्रीधर एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ श्रीराम एंड श्रीधर, दोनों दिया होगा तो दैट मेथड इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो व्हेनेवर करंट अकाउंट इज गिवन इन द प्रॉब्लम तो वी प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट, बट व्हेनेवर ओनली कैपिटल अकाउंट इज गिवन इन द प्रॉब्लम तो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। Hence this partners capital of Sriram and Sridhar is transferred to partners capital account credit side. इसके लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ partners capital account में ट्रांसफर करेंगे। Okay, next item is a sales. All of you know that sales is a factory income. तो sales is transferred to trading account credit side. तो यहाँ पे मैं स्पेशल लिख के रखता हूँ trading account, पहले से लिख देता हूँ जैसे आपको इजीली हम लोग सॉल्व कर सकेंगे। Now creditor Now credit side item को मैंने अभी मैंने बताया था, credit side items is divided into two part, either this is income or it may be liability. Now बोलो sales is income, तो income के लिए factory income and office income is given in the problem. Okay, creditor is not income, creditor is amount payable to supplier, तो this is liability, तो यहाँ पे liability side में ट्रांसफर करेंगे, हम लोग L लिख देते हैं। नेक्स्ट आइटम इज 10% बैंक लोन क्रेडिट साइड। ओके, बैंक लोन लिया हमने तो दिस इज क्या है, इनकम है कि लायबिलिटी है, तो दिस इज लायबिलिटी, तो ये भी लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर करेंगे, सबको समझ रहा होगा। नेक्स्ट आइटम इज कमीशन, कमीशन इज आल्सो क्रेडिट, क्रेडिट साइड में कमीशन लिखा है तो दिस इज कमीशन रिसीव्ड। जब भी क्रेडिट साइड में आइटम है और आपको नहीं समझ रहा है तो दिमाग पे जोड़ दो कि वो इनकम है कि लायबिलिटी है, और डेबिट साइड में या तो एक्सपेंस होगा या एसेट्स होगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो कमीशन इज इनकम, और इनकम बोला तो आपके पास दो जगह है, या तो फैक्ट्री इनकम है कि ऑफिस इनकम है। फैक्ट्री इनकम इज क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बट ऑफिस रिलेटेड इनकम इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। तो बोलो ये कमीशन इज नथिंग बट office income, this is not factory related income, that's why I write here profit and loss account credit side. Next item is an outstanding rent outstanding, but this rent credit side में लिखा है, तो outstanding rent means क्या है, income है कि liability है, तो again outstanding expense is liability, तो ये L लिखता हूँ यहाँ पे। Next है discount, nothing is mentioned, discount received है कि paid है,
तो दिस इज क्रेडिट साइड, दैट मींस डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि क्रेडिट साइड आइटम के लिए हमारे पास दो ही वर्ड है। चेक करो, इनकम है, लायबिलिटी है। क्रेडिट साइड के लिए इनकम है, लायबिलिटी है, तो डिस्काउंट इज नथिंग बट रिसीव्ड हुआ होगा, इसके लिए क्रेडिट साइड में दिख रहा है, तो दिस इज आल्सो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड में हम ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरह हमने ये डिवाइड कर दिया, अपना माइंड सेट कर दिया। ये मैंने पहले बताया वेयर टू ट्रांसफर, अभी बता रहा हाउ टू ट्रांसफर, बिकॉज वी वांट टू स्टार्ट आवर क्वेश्चन। हाउ टू ट्रांसफर के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको देखना पड़ेगा, इज देयर एनी कॉमन आइटम जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसके लिए आपको एडजस्टमेंट रेट करना पड़ेगा। नाउ ट्रायल बैलेंस वन आइटम वन इफेक्ट मैंने तैयारी कर दिया। अभी हम प्रॉब्लम स्टार्ट करना चाहते हैं, इसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ऐसा कोई आइटम है जिसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है, तो उसके लिए मैं पहले से प्लान करके रखता हूं। ओके, नाउ जिसके ऊपर एडजस्टमेंट होगा उसके बाजू में यहाँ पे मैं डॉट लगाऊंगा, तो एक्चुअल में हम लोग बोल सकते हैं पुट अ डॉट मार्क ऑन कॉमन आइटम। ओके, नाउ रीड द एडजस्टमेंट। ऑल ऑफ यू नो दैट फर्स्ट एडजस्टमेंट तो बच्चा जानता है, 11th स्टैंडर्ड का और 12th स्टैंडर्ड का। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 30,000, मार्केट प्राइस 35,000। पहले से इसके एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हम माइंड सेट करके रख देते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा। अभी मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किसके ऊपर डॉट लगाना है, किसके ऊपर कॉमन एडजस्टमेंट है, वो देख रहे हैं। प्रॉब्लम अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है, एग्जाम में जैसे करना है उसका मैं ट्रिक सिखा रहा हूं। नाउ क्लोजिंग स्टॉक टू इफेक्ट, ऑल ऑफ यू नो दैट क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट है। वन इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखना है, सेकंड लास्ट आइटम बाय क्लोजिंग स्टॉक, एंड सेकंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक इज एसेट्स, हेंस क्लोजिंग स्टॉक सेकंड इफेक्ट कहां पे होगा, एसेट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या है बोलो, वन इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकंड इफेक्ट एसेट साइड। ओके, ये जब भी आएगा आप करेंगे, बट क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। तो इफ इन द क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस इज गिवन इन द प्रॉब्लम, तो जो लिस्ट फिगर है ना, छोटा फिगर है, वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे हम 30,000 से इफेक्ट देंगे जब अभी, तो दिस इज नॉट अ कॉमन आइटम बिकॉज़ हियर क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन एंड हियर ओपनिंग स्टॉक इज गिवन। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक है और यह है क्लोजिंग स्टॉक, तो इसको कॉमन आइटम नहीं देखेंगे। फिलहाल मैं क्या चेक कर रहा हूं, विच आर कॉमन आइटम, जिसके ऊपर मुझे डॉट लगाना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है क्रेडिट परचेज ऑफ ₹5,000 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज एन एडजस्टमेंट रिफ्लेक्ट क्रेडिट परचेज नॉट रिकॉर्डेड, दैट इज परचेज नॉट रिकॉर्डेड। अगर कोई परचेज ऑफ गुड्स हुआ होगा और वो रिकॉर्ड नहीं किया है, तो हम अभी रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो हमारे पास दो इफेक्ट क्या होगा। व्हाट इज अ जर्नल एंट्री फॉर क्रेडिट परचेज फ्रॉम सप्लायर, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर का नाम आएगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो क्रेडिट परचेज नॉट रिकॉर्डेड, इसके दो इफेक्ट क्या होगा, ऐड टू परचेज। तो जहां पे ये परचेज लिखा है ना, उसके बाजू में डॉट लगाता हूं। डॉट का मतलब है ये परचेज जो रिकॉर्ड नहीं किया है, तो आपको अभी इसमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो हम करेंगे प्रॉब्लम में। बट सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, सप्लायर को हम क्रेडिटर बोलते हैं, तो सेकंड इफेक्ट क्रेडिटर के साथ भी ऐड होगा। तो क्रेडिटर कहां पे आप देख लो, ये यहां पे, तो इसके बाजू में भी मैं यहां पे डॉट लगा के रखा हूं। तो दैट मींस यू हैव टू रिमेंबर, अगर एग्जाम में लिखा होगा क्रेडिट परचेज नॉट रिकॉर्डेड, तो अभी से याद रखना शुरू करो, ऐड टू परचेज एंड ऐड टू क्रेडिटर। ऐसे तो मैंने आपको जो एडजस्टमेंट का पूरा गाइडलाइन दिया है, उसके अंदर पेज नंबर 6 एंड 7 पे आपको ये इफेक्ट दिखाई देगा। बोलो, इफेक्ट ऑफ क्रेडिट परचेज नॉट रिकॉर्डेड, ऐड टू परचेज, ऐड टू क्रेडिटर। एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूं, चलो। क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, ऐड टू सेल्स, ऐड टू डेटर। क्रेडिटर में नहीं ऐड करना, डेटर के साथ ऐड करना, जब आएगा तब देखेंगे। फिलहाल आपको समझ गया है, क्रेडिट परचेज नॉट रिकॉर्डेड, ऐड टू परचेज होने वाला है, तो परचेज के बाजू में मैंने डॉट लगा के रख दिया, एंड उसका सेकंड इफेक्ट इसके साथ जाएगा, क्रेडिटर के साथ। ओके, नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस ₹1,000। ऑल ऑफ यू नो दैट आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी इज गिवन इन द प्रॉब्लम। तो इसका कनेक्शन कहां है, वेजेस, वेजेस के साथ है, तो वेजेस के बाजू में भी डॉट लगाओ। अभी इसका इफेक्ट क्या देने का, जब प्रॉब्लम करेंगे तो मैं फिर से डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं ये देख रहा हूं कि कॉमन वर्ड क्या आ रहा है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस वर्ड आया तो पुट अ डॉट मार्क ऑन वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी तो पुट अ डॉट मार्क ऑन सैलरी। तो ये मेरा काम हो रहा है ओनली डॉट लगाने का। इसका इफेक्ट क्या करेंगे वो मैं क्वेश्चन में कर बताऊंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, राइट ऑफ फर्दर बैड डेट।
राइट ऑफ रुपीज 2000 फॉर द बैड डेट, तो बैड डेट एंड मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑफ डेटर ऑन डेटर, तो बैड डेट एंड आरडीडी टू एडजस्टमेंट है, तो बैड डेट एंड आरडीडी ऑन डेटर है, तो पुट अ डॉट मार्क ऑन डेटर्स, टू डॉट, डबल डॉट इसलिए लगाया क्योंकि बैड डेट भी है और आरडीडी भी है। ओके, इसका इफेक्ट भी क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन में करके बताएंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। जस्ट मैं क्या कर रहा हूं, पुट द डॉट मार्क ऑन कॉमन आइटम एंड व्हाई वी पुट डॉट वो अभी आपको बताता हूं, ठीक है। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 5%, वर्ड क्या है लैंड एंड बिल्डिंग, तो पुट द डॉट मार्क ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, नेक्स्ट मशीनरी एट 10%, तो पुट द डॉट मार्क ऑन मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी लिखा है, यहां पे मैंने डॉट लगाया। नाउ 6 एडजस्टमेंट, provide interest on partners capital at 5% per annum. This is a transaction between partnership firm and partners. Okay, now इसका कनेक्शन किसके साथ है, पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्ट, दो इफेक्ट कहां पे देंगे, तो आपने एक सेपरेट अकाउंट बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो इसका कनेक्शन कौन से अकाउंट के साथ जाने वाला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ जाने वाला है, लेकिन हमने ये सेपरेटली अकाउंट ही बनाया, तो उसके साथ यहाँ पे मैं डॉट लगाऊंगा नहीं क्योंकि वहां पे इफेक्ट दूंगा ही जब प्रॉब्लम करेंगे तो। नाउ स्टार्ट विथ प्रॉब्लम। ओके, रीड केयरफुली प्रॉब्लम। Sriram and Sridhar are partners sharing profit and losses equally. That means profit sharing ratio is equal. Okay, तो whenever we get net profit, यहाँ पे जब भी net profit आएगा उसको हम equally divide करेंगे। तो here sharing profit and losses equally लिखा है, इसके लिए हम equally करेंगे। ओके, तो जो रेशियो दिया होगा उसके हिसाब से हम लोग प्रॉफिट या लॉस को डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2007 इज गिवन इन द प्रॉब्लम। तो टाइटल क्या होगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2007। ओके, यहाँ पे स्पेशल लिखेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, एंड दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर। बट फॉर बैलेंस शीट व्हाट यू राइट, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2007। लैंग्वेज को बराबर ध्यान से समझना। ओके, तो ये डेट देखना है। उसके बाद ये लिस्ट ऑफ आइटम हमने देखा, दिस इज डेबिट बैलेंस एंड दिस इज क्रेडिट बैलेंस, एंड देन 6 एडजस्टमेंट इज आल्सो ओवर। ओवर मतलब हमने देखा कि व्हाट आर द कॉमन आइटम। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, पुट अ डॉट मार्क ऑन कॉमन आइटम, then you have to check is there any secret adjustment. These are the 6 adjustment, but secret adjustment is given in trial balance. Trial balance में छुपे हुए कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, उनको ढूंढना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्रेडिट साइड में एक आइटम लिखा है 10% बैंक लोन 20,000 and date is given 1st January 2007, but today's date is 31st March 2007 because we prepare this final account as on 31st March 2007। तो ऐसा समझना है कि आज की डेट 31st March 2007 है, बट लोन हमने कब लिया है, बोलो हमने, मतलब we are the accountant of श्रीराम एंड श्रीधर एंड फर्म। ओके, उनके कंपनी के अकाउंटेंट है। तो 10% बैंक लोन, दिस इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, 20,000 इज अ लोन अमाउंट। ओके, तो दिस इज फॉर सीक्रेट एडजस्टमेंट, इसके बारे में हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जरा ध्यान से सुनना। तो और कुछ ढूंढो, और किधर सीक्रेट एडजस्टमेंट है, एडवर्टाइजमेंट और ब्रैकेट में कुछ लिखा है 2 ईयर, वी प्रिपेयर दिस अकाउंट फॉर 1 ईयर, बट हियर गिवन दैट एडवर्टाइजमेंट फॉर 2 ईयर, तो ये भी एक सीक्रेट एडजस्टमेंट। तो दीज आर द 2 सीक्रेट एडजस्टमेंट। इसके कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसके कितने इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो नाउ सीक्रेट एडजस्टमेंट के बारे में पहले सोचने का है, एंड देन वी स्टार्ट कंप्लीट क्वेश्चन। तो लेट अस टेक सीक्रेट एडजस्टमेंट। स्टार्ट कर रहा हूं प्रॉब्लम, ध्यान से सुनना। मैं ये सीक्रेट एडजस्टमेंट के जो आइटम है उसको ट्रांसफर भी करूंगा और उसके एडजस्टमेंट के बारे में हम सोचेंगे। नाउ द फर्स्ट आइटम अगर आप देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, सीक्रेट एडजस्टमेंट, ये आइटम हम अभी स्टार्ट करेंगे लेना, लेकिन पहले ये आइटम के बारे में हम सोच लेते हैं जिससे मिस्टेक नहीं होगा। एडवर्टाइजमेंट 2 years 6,000। नाउ एडवर्टाइजमेंट फॉर 2 years 6,000, वेयर यू ट्रांसफर दिस एडवर्टाइजमेंट, बोलो लिखा है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो आप डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, आप ऐसे जरूरी नहीं कि कहां पे भी है, आप फर्स्ट आइटम भी लिख सकते हैं। तो नाउ
to advertisement. Amount of advertisement is how much? 6,000. बट सीक्रेट एडजस्टमेंट है, इसके लिए वो फिगर को आप इनर कॉलम में लिखो, क्योंकि जिसके ऊपर एडजस्टमेंट होता है, जिसके ऊपर डॉट लगा होता है, उस फिगर को इनर कॉलम में लिखना है. नाउ एडवर्टाइजमेंट इज 6,000, but this is for 2 years and we prepare this account for 1 year. So what is the amount for 1 year? तो 1 year का कितना होगा? All of you know that easily calculate कर सकते हैं. 6,000 is for 2 year, तो 1 year का 3,000. तो 1 year का फिगर ही जाना चाहिए. तो extra amount paid is how much? 3,000. तो वो 3,000 is nothing but क्या बोला जाएगा? Prepaid. तो यहाँ पे एक स्पेशल ट्रीटमेंट है प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट. ध्यान से देखना. Okay, 6,000 is given in the problem, but this 6,000 is for 2 year. मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 2 year. But we prepare this account for 1 year, ended on 31st March 2007. तो 6,000 2 साल का, तो 1 year का कितना होगा? 3,000 ही होना चाहिए. But we paid 6,000, तो हमने जो एक्स्ट्रा 3,000 पेड किया है, this is the next year expense paid in the current year. That's why we have to deduct this amount from the expenses. यहाँ से माइनस करके इस 3,000 को उठा के हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? एसेट साइड में, because prepaid advertisement is assets होता है. तो here we write prepaid advertisement. ये सीक्रेट एडजस्टमेंट था. ओके, डायरेक्टली आउटर कॉलम में हम लिख रहे हैं 3,000. That means मैंने ये 6,000 ट्रांसफर कर लिया. देखो बड़ा ध्यान से, बट 6,000 को दो पार्ट में डिवाइड किया. 3,000 एंड 3,000. ट्रांसफर तो 6,000 ही किया है, बट इन द वे ऑफ एडजस्टमेंट वी डिडक्ट दिस 3,000 फ्रॉम 6,000 एंड दिस 3,000 इज ट्रांसफर्ड टू asset side because the next year expense paid in the current year. Okay, now let us take second secret adjustment. 10% बैंक लोन. यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट बना के रखा है, देख लो, ऐसे कैलकुलेट कर रहा हूँ. 10% बैंक लोन एंड लोन टेकन ऑन 1st Jan 2007. 1st Jan 2007 को लोन लिया है. डेट ईयर एंडिंग क्या है? 31st March 2007. तो हाउ मेनी मंथ्स आर ओवर? 1st Jan, that is Jan, Feb, March. 3 months are over. So 3 monthly interest you have to calculate. So here I calculate here 10% interest on bank loan. Calculation करके देख रहे हैं. Loan amount is 20,000. Okay, 10% is, so what you write? 10 upon 100. But loan is taken on 1st Jan. Year ending is 31st March. So 3 months are over. Out of 12. You have to calculate 3 monthly interest. Now calculation आराम से आता है, मैथ्स आता है ना थोड़ा सा. ओके, तो सब लोग को आता ही है मैथ्स. एसपी स्टूडेंट भी होते हैं, लेकिन डरने का नहीं. मैथ्स सॉल्व करो. 3 4 जा एंड दिस इज 500. ओके, तो 500 is the interest on bank loan for that 3 month. Now after calculating this 500, immediately what you have to check whether this 500 is paid by our firm or not. ये 500 रुपीज हमने बैंक को इंटरेस्ट दिया है कि नहीं, इमीडिएटली चेक करने का डेबिट साइड में. क्या डेबिट साइड में ऐसा कोई आइटम था इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन? तो दिस इज नॉट गिवन. दैट मींस यू हैव टू चेक वेदर दिस इंटरेस्ट इज पेड और नॉट. तो आपने देखा कि नॉट पेड. नॉट पेड है ना. अगर पेड होता तो मैं वो माइनस करता इसमें से. बट 500 इज अ इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ. हमने चेक किया वेदर पेड और नॉट. तो नॉट पेड पता चल गया हम लोग को. तो 500 माइनस नॉट पेड, दैट इज 500 माइनस 0 इज अगेन 500. तो फुल अमाउंट क्या हो गया? स्टिल इट इज पेएबल. ये पैसा देना बाकी है. तो दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन. अभी भी आउटस्टैंडिंग है. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, दिस इज आवर एडजस्टमेंट. इनडायरेक्टली उसने एडजस्टमेंट दिया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज आउटस्टैंडिंग. Now all of you know that हमने जो आपको गाइडलाइन फॉर फाइनल अकाउंट शीट दिया है, उसके अंदर बता दिया है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, व्हाट आर द टू इफेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. दिस इज द एक्सपेंस फॉर करंट ईयर. यस, इट इज द एक्सपेंस फॉर करंट ईयर. तो इट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डेबिट साइड में तो लिखना ही है आपको. But this is interest outstanding, that means this is payable, और outstanding expense is liability होता है. तो second effect is liability.
दैट मींस इनडायरेक्टली ये एडजस्टमेंट था, इसके लिए दो इफेक्ट आया इस 500 का। तो अभी फाइनल आंसर बता रहा हूं, देख लो 10% बैंक लोन, व्हाट इज गिवन 20,000, this is liability, so you transfer this 20,000 to liability side, okay, after capital 10% bank loan, you may write this in the inner column भी लिख सकते हो, okay, 20,000 अगर आपने inner column में लिखा तो आपको ये मैंने बताया 500 का टू इफेक्ट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड लायबिलिटी साइड, तो आप इधर ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फुल फॉर्म लिखेंगे 500, तो टोटल इज 20,500, ओके, so this effect is over. Now second effect, so that means मैंने क्या किया, फर्स्ट 20,000 का वन इफेक्ट दे दिया एंड टू इफेक्ट ऑफ 500 देने जा रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, व्हाट यू राइट, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन या इंटरेस्ट ऑन लोन 500, राइट डाउन प्रॉपर्ली, फिगर टू फिगर, यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस, ये बराबर ध्यान से लिखना है क्योंकि टोटल भी हमें ही करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड, तो मैंने लायबिलिटी साइड में ऐड कर दिया है, या उसको सेपरेट भी बता सकते थे। तो दैट मींस 20,000 का तो वन इफेक्ट ही गया है, बिकॉज़ ट्रायल बैलेंस वन आइटम वन इफेक्ट, बट एडजस्टमेंट वन आइटम टू इफेक्ट, तो टू इफेक्ट इज ओवर, ओके। नाउ ऑल सीक्रेट एडजस्टमेंट आर ओवर, एडवर्टाइजमेंट इज आल्सो ओवर, बैंक लोन इज आल्सो ओवर। नाउ वी स्टार्ट आवर ओरिजिनल क्वेश्चन, लेट्स ट्रांसफर ईच एंड एवरी आइटम ऑफ गिवन ट्रायल बैलेंस। आपको समझा होगा, आज का फर्स्ट लेक्चर इसलिए मैं बार-बार रिपीट करता हूं हमेशा, ओके। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वी हैव टू ट्रांसफर डिसाइड कर लो, देन पुट अ डॉट मार्क ऑन कॉमन आइटम, देन चेक इज देयर एनी सीक्रेट एडजस्टमेंट, तो आपने सीक्रेट एडजस्टमेंट का इफेक्ट दे दिया। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो कि एग्जाम में पूछते ही है ज्यादातर, सभी क्वेश्चन में आप देखेंगे आगे फ्यूचर के जितने भी क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में ये आइटम बार-बार रिपीट होगा, ओके। तो हियर वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड, देन यू हैव टू चेक वेदर इट इज पेड और नॉट, और पेड और नॉट चेक करने के बाद देखो इज देयर एनी आउटस्टैंडिंग, एंड आउटस्टैंडिंग है तो आपको दो इफेक्ट देने का है, ओके। मैं इसको प्यार से इसको चिकन लेग बोलता हूं, एडजस्टमेंट को चिकन लेग मतलब टू इफेक्ट देने का है आपको, ओके। इसके दो इफेक्ट आपने देखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड लायबिलिटी साइड। कैलकुलेशन आपको बराबर पॉज करके देखने का है तो समझ जाएगा। नाउ लेट अस टेक वन बाय वन आइटम, लेट अस स्टार्ट विद परचेज। परचेज इज 25,000, हियर परचेज इज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड आइटम, और फॉर्मेट इज टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज लेस परचेज रिटर्न, बट देयर इज वन डॉट इज आल्सो गिवन, ओके। ध्यान से देखना, परचेज 25,000, there may be purchase written in the problem, okay, then you get this final figure, then we leave one line for that particular dot, one adjustment, यहाँ पे एक लाइन छोड़ा है मैंने, वो adjustment आने वाला है तो हम adjustment का इफेक्ट देंगे। That means if there is a dot, dot means dot indicate leave one line after that item, okay। और सबको मालूम है परचेज का इफेक्ट ये सेकंड एडजस्टमेंट के साथ है, ओके। नाउ वो आएगा तब हम इफेक्ट देंगे, फिलहाल आप लोग ने यहाँ पे ऐसे लाइन छोड़ के रख दिया है। नेक्स्ट आइटम इज डेटर, डेटर इज एसेट्स, तो डेटर इज एसेट्स, अभी आपको सोचना नहीं पड़ता है, इमीडिएटली एसेट साइड में जाना है, डेटर एसेट साइड, डेटर्स, ध्यान से देखना, देयर आर टू डॉट, व्हाट इज द फिगर ऑफ डेटर्स, डेटर इज 12,000, तो वी राइट डेटर्स 12,000, okay, and there are two dot means there are two adjustment, तो leave 4 to 5 line because this is a very important item। डेटर्स के ऊपर तो सबको मालूम है, एफआईजीसी में भी बैड डेट रिजर्व, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ऐसे एडजस्टमेंट आते थे, तो इस साल भी आएंगे जिसका स्पेशल एक लेक्चर होने वाला है, इफेक्ट ऑफ बैड डेट रिजर्व, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, फुल इस आइटम के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के इस लेक्चर में जो इफेक्ट आने वाला है उसका इफेक्ट हम लोग देखेंगे, ओके। तो डेटर्स मैंने इनर कॉलम में लिखा, dot indicate that you have to write that figure in inner column and leave lines, there are two dot means you have to leave 3 lines, okay। next item is क्या है, opening stock 20,000, so you transfer opening stock, there is no dot, so directly outer column, okay।
Next item is a wages. Wages is also trading account debit side. So we write here 2 wages. Is there any dot on wages? क्या wages के बाजू में dot है? Dot means there is an adjustment. Yes, wages is 5,000. If there is a dot, you have to write this figure in inner column and leave बोलो 1 line. 1 dot means leave 1 line for that particular adjustment. Next item is a salary profit and loss account. Okay, 8,000. So salary is transferred to profit and loss account debit side to salaries. But is there any dot? Yes. Amount कितना है? Amount is बोलो salary is 8,000. So amount is 8,000. So write down 8,000 and leave 1 line. Okay. समझ में आ रहा होगा? आराम से एकदम प्रॉब्लम करना है ये. Now salary 8,000. Land and building assets है पहले ही बता दिया है 30,000. Land and building assets. Okay. तो asset side land and building शॉर्टकट वर्ड नहीं यूज करना है आपको, फुल फॉर्म लिखना है 30,000 एंड देन लीव 1 लाइन बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर एडजस्टमेंट. अगेन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर बोथ आर एसेट्स. तो वी राइट प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एसेट साइड. प्लांट एंड मशीनरी राइटिंग प्रैक्टिस करना है. ओके एंड लीव 1 लाइन and furniture figure देख पाओ मैं. Okay, what a figure of plant and machinery. Plant and machinery 25,000 and furniture is 16,000. Plant and machinery 25,000. यहाँ पे लिखा 25,000 एक लाइन छोड़ दिया. Furniture 16,000 एक लाइन छोड़ दिया. आपको समझ में आ रहा होगा. Dot indicate that there is a one adjustment. Understood? Okay. Next item is a advertisement. This is already over because this is a secret adjustment. ये आराम से आपने पहले इफेक्ट दे चुका है. Now next item bills receivable asset side item. Again bills receivable assets. तो फिर से वहाँ पे मैं जा रहा हूँ bills receivable assets. Figure of bills receivable is how much? 8,000. तो bills receivable 8,000. बिल्स रिसीवेबल 8,000. ध्यान से सुनना, बोर नहीं होना. ओके. इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आइटम. इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आइटम. नो डॉट, डायरेक्टली आउटर कॉलम. इंश्योरेंस फिगर इज हाउ मच? 2,000. तो डायरेक्टली आउटर कॉलम 2,000. यहाँ पे फिगर बहुत अच्छी तरह सब लिखना. ओके. नेक्स्ट है ड्राइंग. ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स. पार्टनर्स ड्राइंग इज डेबिटेड टू व्हिच अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. 12th स्टैंडर्ड में आपको ये सब फिल इन द ब्लैंक्स में पूछते हैं, जो ध्यान से देखना. ओके. पार्टनर्स ड्राइंग इज डेबिटेड टू डैश अकाउंट. तो आपका आंसर होगा पार्टनर्स कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट. फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा तो पूरा दोनों नाम लिखना है. पार्टनर्स कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट बिकॉज़ देयर मे बी करंट अकाउंट प्रॉब्लम आल्सो. अभी तो फिलहाल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाला प्रॉब्लम कर रहे हैं. तो ड्राइंग इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2,000 and 3,000. श्रीराम 2,000 and Sridhar 3,000. ड्राइंग. ओके. इस तरह आपको लिखने का है. टू ड्राइंग. नेक्स्ट आइटम कैश इन हैंड 5,500 इज एसेट्स. कैश इन हैंड एसेट साइड. कैश इन हैंड 5,500. Next item is a rent. Rent is a 7,000 profit and loss account debit side. Okay. Is there any dot on rent? अभी इसके ऊपर कोई dot है? No dot. No dot means directly outer column. Rent 7,000. No dot means no adjustment. Adjustment नहीं है, इसलिए directly outer column में लिखा है. And the last item of debit side है power and fuel 3,000. Power and fuel सोचना नहीं पड़ता है, पहले से हमने सोच लिया था. This is transfer to trading account debit side to power and fuel. Okay, this is 3,000. This is 3,000. By this way debit side item is over. ध्यान से देख लो बराबर. ये सभी आइटम को हमने डेबिट साइड में ट्रांसफर किया. अगर ध्यान से आप देखेंगे तो डेबिट साइड आइटम का इफेक्ट कहाँ पे दिखता है? चलो देखो. डेबिट साइड आइटम मींस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड आइटम. It may be profit and loss account debit side item. It may be कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड आइटम. इट मे बी एसेट साइड. लायबिलिटी साइड में तो वो
हमने ये एडजस्टमेंट पहले से कर दिया था क्रेडिट साइड वाला। ओके, तो डेबिट साइड आइटम आर ट्रांसफर टू आइदर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, या लास्ट में एसेट साइड में जाता है, लायबिलिटी में नहीं आता है। Let us start with this liability side item or maybe profit and loss account credit side item या trading account credit side item. So let us start with this. Capital, Sriram and Sridhar लिखा है, profit and partners capital account credit side. Buy balance brought down लिखना है, this one special ध्यान रखना, 40,000 and 30,000. तो capital balance transfer to partners capital account credit side. डायरेक्टली वहां पे ट्रांसफर मत करना लायबिलिटी साइड में, दिस इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगेन रिपीट कर रहा हूं, बार-बार पहली बार आप सुन रहे हैं नाम। देयर आर टू मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, बिकॉज़ whenever only capital account is given in the problem, so that is called fluctuating capital method, because after taking all adjustment your this balance is fluctuate and you will get some new balance and that is ultimately transferred to liability side. तो ये बैलेंस फिक्स नहीं रहने वाला, ये फ्लक्चुएट होने वाला है। That's why whenever capital account is given in the problem, तो this is called fluctuating capital method. लेकिन जिस प्रॉब्लम में करंट अकाउंट भी दिया होगा तो उस मेथड को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड whatever the current account is given in the problem, then we prepare partners current account. तो ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो सब कुछ करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बट कैपिटल बैलेंस इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू लायबिलिटी साइड इन दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अगर आएगा तब हम लोग देखेंगे, फिलहाल आपका दिमाग इस पे ही चलाओ। ओके, तो व्हेनेवर कैपिटल अकाउंट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, दिस इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। नाउ नेक्स्ट आइटम ले लो, सेल्स। सेल्स इज ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, तो वी राइट सेल्स 60,000, अभी तक सेल्स रिटर्न आया नहीं है। Creditor, liability side item, there is one adjustment dot है, creditor 21,000, liability, creditor, okay, अब ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हो, we write here suppose creditors 21,000, is there any dot? Yes, तो leave one line for that particular adjustment, dot मतलब एक adjustment है। Next है 10% बैंक लोन, ये पहले ही मैंने ले लिया, तो 10% बैंक लोन हमेशा ध्यान रखना, परसेंटेज इज गिवन इन द प्रॉब्लम, तो दिस इज सीक्रेट एडजस्टमेंट। डेट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, तो यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इंटरेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड, देन यू हैव टू चेक वेदर पेड और नॉट, इस तरह चेक करने का है। और अगर बैलेंस इधर आता है तो दिस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू इफेक्ट, वन इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, अदर इफेक्ट एड टू लायबिलिटी साइड। इसके लिए मैंने दो इफेक्ट दे दिया था। नेक्स्ट आइटम है कमीशन, कमीशन क्रेडिट साइड आइटम। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पहले लिखा है, तो बाय कमीशन, ओके, by commission 5,000. Next item is a outstanding rent. Outstanding rent is a liability. ट्रायल बैलेंस वन आइटम वन इफेक्ट, बट यही नाम अगर नीचे लिखा होता है ना, ये आउटस्टैंडिंग ऐसा लिखा होता है, तो इसके दो इफेक्ट होते हैं। बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग इनकम अगर कुछ भी ट्रायल बैलेंस में दिया होगा तो उसका वन इफेक्ट होगा। आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ लायबिलिटी 1,000, डायरेक्टली वन इफेक्ट आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, ओके। अमाउंट इज हाउ मच? 1,000, वी राइट हियर 1,000। एंड लास्ट आइटम डिस्काउंट रिसीव्ड इज 500, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट how much? 500. So by this way all these items are over. तो मैंने क्या किया है, सभी ट्रायल बैलेंस के आइटम विद दिस सीक्रेट एडजस्टमेंट ट्रांसफर कर दिया है। आपको समझ आ रहा होगा। लास्ट पार्ट, इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट। एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, धनाधन भी इफेक्ट दे सकते हैं, और ये एडजस्टमेंट लास्ट ईयर के है, एफआईएससी के, कोई ज्यादा टफ नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट प्राइस 30,000, मार्केट प्राइस 35,000। Closing stock is always valued at cost or market price, whichever is less. ये अचानक में बीच में मैं डायलॉग बोलता हूँ, तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से सुनना है और याद रखना है, क्योंकि ये फिलअप में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो नाउ क्लोजिंग स्टॉक टू इफेक्ट 30,000 का देने जा रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक
30,000. And closing stock is an assets. This is transferred to asset side. Closing stock. Closing stock 30,000. First adjustment is over. Two effect are over. Next, already I explained this. Credit purchase 5,000 were not recorded in the books of account. That's why we have to record. Credit purchase not record. तो मैं record करने जा रहा हूँ. Okay. Add to purchase. Add to purchase. There is no purchase return. इस प्रॉब्लम में purchase return नहीं आया. तो यहाँ पे add. We write again credit purchase which is unrecorded. What is the amount of credit purchase which is not recorded? 5,000. तो ये 5,000 ऐड करेंगे यहाँ पे. तो total credit purchase is now 30,000. So one effect is add to purchase and second effect is add to creditor. तो हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे credit purchase not recorded या फिर से लिखेंगे credit purchase. Okay, this is unrecorded credit purchase. Now we record. So total is 26,000. Creditor amount. Okay, and here 25,000 plus 5,000, 30,000. So credit purchase not recorded, add to purchase, add to creditor. अगर credit sales not recorded बोला होता तो add to sales में करते हम लोग, यहाँ पे add करते हैं, and add to debtor is the second effect. Sales not record तो हम sales में भी add करते हैं और debtor में भी add करते हैं. तो credit purchase not recorded तो add to purchase और add to creditor. स्टार्टिंग के 5-6 लेक्चर तक मैं बहुत सारी बातें बार-बार रिपीट करता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह आपको याद रह जाती है. नेक्स्ट आइटम. तो फर्स्ट एडजस्टमेंट ओवर, सेकंड एडजस्टमेंट ओवर, थर्ड एडजस्टमेंट. आउटस्टैंडिंग वेजेस 1000. आउटस्टैंडिंग वेजेस, टू इफेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग वेजेस. बोलो, आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब होता है वेजेस फॉर द करंट ईयर नॉट पेड, इट इज पेएबल. But how much wages is already paid? आपने यहाँ पे जगह भी छोड़ा है. 5,000 is paid and 1,000 is still outstanding. तो आपको 1,000 ऐड करना है. Outstanding wages, add to wages. Outstanding expenses जब भी adjustment में दिया होगा तो ऐड करने का है. Outstanding wages 1,000. Total here is 6,000. Add to wages and second effect of outstanding wages is a liability. Outstanding wages 1,000. Similarly, outstanding salary is 2,000. Outstanding salary is 2,000. तो salary के लिए भी आपने जगह छोड़ दिया है. Add to salary. Outstanding salary. Outstanding salary 2,000. So that this is 10,000. Outstanding salary 2,000. One effect, add to salary, and second effect, liability side. Outstanding salary. Okay. Outstanding expense होता है तो add to that particular expense and second effect, liability side. प्रीपेड एक्सपेंस होता तो लेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस एंड सेकंड इफेक्ट एसेट साइड, जो कि हमने आपको पहले से आपको जो गाइडेंस नोट दिया है उसके अंदर पूरा लिखा हुआ है और वो एडजस्टमेंट के इफेक्ट पूरा उसमें बताया हुआ है. नाउ आपने नोटिस किया एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट. सो दिस थर्ड एडजस्टमेंट इज ओवर. नाउ बैड डेब्ट 2000 एंड आरटीडी इज 5%. ये चार नाम ध्यान रखना. बैड डेब्ट, bad debt, RDD, reserve for doubtful debt, this is also called bad debt reserve. Then reserve for discount on debtor, नाम ध्यान देना. बहुत सारे स्टूडेंट इसमें बहुत सारे मिस्टेक करते हैं. इंपॉर्टेंट पार्ट है ये. bad debt, RDD, RFDD and this is RFDC. bad debt, reserve for doubtful debt, bad debt reserve, one is the same. Reserve for discount on debtor and reserve for discount on creditor. ये तीनों का इफेक्ट, ये फर्स्ट 3 आइटम, दिस एंड दिस, इसका सबका इफेक्ट इसके साथ होता है डेटर्स के ऊपर. एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, दिस इज ऑन क्रेडिटर्स, इसका इफेक्ट क्रेडिटर्स के ऊपर होता है. नाउ इसके ऊपर एक स्पेशल एक पर्टिकुलर लेक्चर चलने वाला है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग. लेकिन इस प्रॉब्लम में ये दो नाम आ गए हैं. सी दैट
Write off bad debt 2000. So bad debt is 2000. That is bad debt as per adjustment is 2000. Now RDD is 5%. तो RDD 5% दिया है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है. तो here this and this is given in the problem. This is called new bad debt. अगर ये bad debt ऊपर भी दिया जाता है तो उसको old bad debt बोलते हैं. 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया था. ओके, ध्यान देना, बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी नहीं आता है. This whatever the bad debt, RDD, RFDD, RFDC which is given in the adjustment, these are called new bad debt, new RDD, new RFDD, new RFDC. लेकिन यही चार नाम अगर ऊपर दिया रहेगा तो that is called old. ध्यान देना, ठीक है. Now this is called new bad debt is how much 2000 and new RDD is how much 5%, जो कि मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया है. पेज नंबर 10 ऑफ और नोट्स, हमारे नोट्स में जो पेज नंबर 10 पे लिखा गया है स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट, आरडीडी, आरएफडीडी, आरएफडीसी, ये आपको बार-बार रिवाइज करना है. ओके, लेकिन अब इसका इफेक्ट कहां पे हम देने वाले हैं? बैड डेट एंड आरडीडी का इफेक्ट किसके साथ होने वाला है? डेटर्स के साथ. और डेटर्स के ऊपर हमने दो डॉट भी लगा के रखा है. अभी बता रहा हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं. यू हैव टू टेक ऑल एडजस्टमेंट but except this bad debt, RDD, RFDD, RFDC. That means you have to take all adjustment. सभी adjustment पहले लेने का है और इसका इफेक्ट सबसे लास्ट में देने का है. And for that we have to apply formula, जो कि हमने आपको पेज नंबर 10 में दिया हुआ है. मैं क्या बोल रहा हूँ, बार-बार रिपीट कर रहा हूँ. सभी के इफेक्ट पहले देने का है. इसको फॉर द टाइमिंग साइड में रखो. तो लीव दिस आइटम फॉर द टाइमिंग. इसका इफेक्ट क्या देने का है अभी मैं पूरे कंप्लीट करने के बाद देने वाला हूँ. Now let us take this fifth adjustment. Depreciate land and building by 5%. Where is that land and building? Asset side. देखो, land and building 30,000 less depreciation. How much? 5% depreciation. What is the 5% of 30,000? 1,500. If you remove 1 0, so that 3,000 is at 10%. 3,000 10% of 5%, 1,500. So what is your final figure? 28,500 is the final figure. Now second effect of depreciation, all of you know that it is transferred to profit and loss account debit side. To depreciation on machinery. आप एक साथ ऐसा टाइटल लिख सकते हो, depreciation on land and building 1,500. Okay. And next step, depreciate land and building and machinery by 10%. मशीन के ऊपर भी 2 इफेक्ट देने का है. Plant and machinery 10% depreciation. At the rate of 10%. What is the 10% of 25,000? 2,500. So the outer column is 22,500. The second effect of depreciation is transferred to profit and loss account. So depreciation on इसके ऊपर बोला था मशीनरी पे 2,500, तो टोटल इज 4,000. ओके, ये सभी को आता ही है, ये सभी एडजस्टमेंट ये सभी को मालूम है. तो व्हाट आर द टू इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन? वन इफेक्ट लेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एसेट्स एंड सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. तो ये सबके दो इफेक्ट आपको समझ में आ रहा होगा. Now let us take last adjustment. Provide interest on partner's capital 5% per annum. Now where is interest on capital? See that interest on partner's capital. What is the capital figure? 40,000, 30,000. This is already transferred. 40,000 and 30,000. Now what are the two effect of interest on capital? ध्यान देना, अभी मैं कुछ एक्स्ट्रा कुछ आपको नॉलेज दे रहा हूँ जो आपने लास्ट ईयर नहीं सीखा था. Interest on partner's capital. Capital invested by Sriram is 40,000. Capital invested by Sridhar is 30,000. And firm pays interest to partners. Firm wants to pay interest on this capital. So you have to calculate this 5% on capital. So what is the 5% of 40,000? Bolo 2,000. And what is the 5% of 30,000? 1,500. But what are the two effects of interest on capital? Interest on capital payable. It is payable to
partner is a expense for the firm. So one effect it is debited to profit and loss account, but credited to partners capital account. तो एक इफेक्ट यहाँ पे देने का और एक इफेक्ट यहाँ पे देने का है. याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, one effect is debited to profit and loss account. Why it is debited? Because this is expense for the firm. It is credited. इसको क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं, उनके कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो इनको सेटलमेंट अब बाद में करता है. तो टू इफेक्ट में देने जा रहा हूँ. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. There are two partners, Sriram and Sridhar. बोलो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया, कितना है? 40,000 का 5% 2,000 and 5% of 30,000 1,500. Total is 3,500. Second effect by interest on capital. 2,000 and 1,500. 2,000 and 1,500. Transaction between partners and partnership firm are transferred to profit and loss account and partners capital account. ध्यान देना, मैं बता बोल रहा हूँ. ओके, अभी आपने नोटिस किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू हियर पार्टनर्स कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट. अगर करंट अकाउंट वाला प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे करंट अकाउंट लिखा होगा. ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हियर एंड हियर. अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो यू हैव टू कैलकुलेट दैट इंटरेस्ट, एंड इफ डेट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम देन यू हैव टू कैलकुलेट 6 मंथली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ध्यान देना, ड्राइंग के ऊपर अगर इंटरेस्ट, इस ड्राइंग के ऊपर अगर इंटरेस्ट वाला एडजस्टमेंट होगा तो आपको स्पेशल 6 मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जो कि हम अगले प्रॉब्लम में हम सॉल्व करेंगे. लेकिन इफेक्ट अभी से मैं बता देता हूं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट. ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिवर्स एडजस्टमेंट होता है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट. नाउ अभी आपने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इशारे से बात कर रहा हूं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इफेक्ट लाइक दिस. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू इफेक्ट लाइक दिस. सैलरी टू पार्टनर, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा होगा सैलरी टू पार्टनर देन टू इफेक्ट लाइक दिस. सपोज सैलरी टू श्रीराम लिखा होगा तो टू सैलरी टू श्रीराम एंड बाय सैलरी टू श्रीराम. सिमिलरली कमीशन टू पार्टनर बोला होगा तो टू कमीशन टू पार्टनर एंड बाय कमीशन टू पार्टनर. तो ये 4 एडजस्टमेंट आने का चांसेस है. ध्यान से देखना, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसे नहीं, बस 2 इफेक्ट देने का है. जब भी आएगा फ्यूचर में हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं. ओके, तो आपने अभी देखा यहाँ पे all adjustment are over, okay, except this 6 adjustment. Okay, 6 adjustment are over, but write off 2,000 for bad debt and maintain RDD except this bad debt and RDD adjustment. अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं bad debt and RDD. जब भी bad debt RDD वाला प्रॉब्लम होगा तो ध्यान देना, ये नाम ऊपर भी आ सकता है और ये नाम यहाँ पे भी आ सकता है. ओके, अगर ऊपर भी ये नाम आता तो हम लोग उसका इफेक्ट लास्ट में देते हैं. दैट मींस पहले नहीं देते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला बोलना पड़ता है. तो स्टार्ट कर रहा हूं बैड डेट एंड आरडीडी का फॉर्मूला. तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद डेटर्स. इसका इफेक्ट डेटर्स से स्टार्ट करने का है, कंसंट्रेट करना पड़ता. डेटर्स एज पर ट्रायल बैलेंस, क्या फॉर्मूला है? डेटर्स एज पर ट्रायल बैलेंस लेसर एट एनी अदर एडजस्टमेंट एंड देन वी टेक इफेक्ट ऑफ बैड डेट एंड आरडीडी. मैं क्या बोल रहा हूँ, डेटर एज पर ट्रायल बैलेंस लेसर एट एनी अदर एडजस्टमेंट का मतलब डेटर से रिलेटेड कोई दूसरा एडजस्टमेंट होता तो पहले ले लेते हैं, तो बाद में आपको ये इफेक्ट देने का है. और कौन सा एडजस्टमेंट डेटर के साथ आ सकता है? जैसे क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, अभी थोड़ी देर पहले बोला था क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, तो ऐड टू सेल्स एंड ऐड टू डेटर, तो वो आपको स्टार्टिंग में पहले करना पड़ता और उसके बाद ये इफेक्ट चालू करते हैं. लेकिन इस प्रॉब्लम में नहीं दिया है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फॉर्मूला ऑफ बैड डेट एंड आरडीडी. नाउ डेटर एज पर ट्रायल बैलेंस less bad debt new. This is called new bad debt. What is the amount of new bad debt? कितना दिया अमाउंट? 2,000.
तो 2000 यहाँ से लेस करने का। Now this is 10,000. You have to apply this formula step by step. First you have to take always back debt. This is called back debt new. Now what is new RTD? New RTD percentage is 5%. Okay. So formula is debtor as per trial balance less or any other adjustment less bad debt new less RTD new. This 5% reserve for doubtful debt is calculated on debtor means this figure not on this figure. Final amount 10,000 दिखता है उस पे 5% कैलकुलेट करना है. तो what is the 5% of 10,500? Okay. So what you get 9,500. Full formula में repeat कर रहा हूँ. Debtor as per trial balance less or any other adjustment less bad debt new less RTD new and आगे क्या होता है less reserve for discount on debtor new that is called less RFDD new but in this problem not given. Okay. कितना भी बोर हो जाएंगे लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं क्योंकि ये बार-बार मैं रिपीट करता हूँ तभी आपको याद आता है. Formula is debtor as per trial balance less or any other adjustment less bad debt new less RTD new less RFDD new. You have to apply step by step. या अंतरा मुकड़ा जो मैं बोल रहा हूँ पहले मुकड़ा फिर अंतरा ये लाइन से बोलना है. That means bad debt पहले लेना है फिर RTD लेना है फिर RFDD लेना है because ऑर्डर में लेंगे तभी ये परसेंटेज इस फिगर पे कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके. नाउ अगर आपने स्टार्टिंग में ले लिया होता तो इसके ऊपर कैलकुलेट हो जाता है तो वो रॉन्ग हो जाता है. नाउ व्हाट इज द फाइनल फिगर हियर 9,500 बिकॉज़ RFDD इज नॉट गिवन. अगर RFDD दिया होता तो इधर प्लेस करते हैं. ओनली बैड डेब्ट और RTD इज गिवन. तो आपने नोटिस किया बैड डेब्ट एंड RTD का 1-1 इफेक्ट आ गया है. नाउ लेट अस टेक सेकंड इफेक्ट. तो फर्स्ट फार्मूला वहां पे कंप्लीट करना है. टू गिव सेकंड इफेक्ट सेकंड फार्मूला सेकंड लॉट फार्मूला यहां पे है. ओके. यहां का फार्मूला है टू बैड डेब्ट फुल फार्मूला में लिखता हूं टू बैड डेब्ट ओल्ड एड बैड डेब्ट न्यू एड RTD न्यू स्मॉल हैंडराइटिंग में लिख रहा हूं या ध्यान से देखना. ओके. टोटल करते हैं एंड लेस RTD ओल्ड. ये लास्ट ईयर का एक फॉर्मूला शायद आपको याद होगा नहीं तो इसके ऊपर पर्टिकुलर लेक्चर के ऊपर जो हमने बैड डेब्ट RTD के ऊपर जो लेक्चर लिया है वो क्लिप आपको देखना पड़ेगा. ओके. फॉर्मूला क्या है 2 टाइम बैड डेब्ट 2 टाइम RTD. बैड डेब्ट ओल्ड अगर बैड डेब्ट ओल्ड दिया रहता यहाँ पे तो वो फिगर इधर आ जाता. बट बैड डेब्ट ओल्ड इज नॉट गिवन इन दिस प्रॉब्लम. ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड नो बैड डेब्ट. बैड डेब्ट न्यू यस बैड डेब्ट न्यू इज हाउ मच 2000. तो यू राइट हियर 2000 because bad debt old is not given. Add RTD new already calculated RTD new is 500 तो 500 ये फिगर आप यहाँ पे लिखेंगे. टोटल इज 2500. ध्यान देना जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट वो कंफ्यूज हो रहे होंगे. एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट. तो बैड डेट न्यू वन इफेक्ट 2000 वहां से लेस किया. सेकंड इफेक्ट यहाँ पे ऐड करो RTD न्यू लेस फ्रॉम दैट डेटर. सेकंड इफेक्ट you have to add here total 2500. then you have to check whether RTD old is given in the problem or not. अगर RTD old दिया होता तो वो इस साइड दिया होता ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड बट RTD old is not given. that means this is also not given. that's why final figure is again 2500. understood? okay. if RTD old means reserve for doubtful debt as per trial balance is given then you have to write that figure here. and then this minus this is this. Sometimes it may happen that this minus this is negative figure. क्या बोल रहा ध्यान से. सपोज RTD old 3000 होता हमें एक्स्ट्रा नॉलेज देना पड़ता है क्योंकि ये सभी अगले क्वेश्चन में आ सकता है. 2500 और RTD old as per trial balance अगर 3000 होता है यहाँ पे तो 2500 minus 3000 is minus 500 नहीं लिखते यहाँ पे डैश लिखते हैं and then what you write here by excess RTD 500 मींस यहाँ पे माइनस फिगर नहीं लिखते हैं और उसको प्लस करके राइट साइड में लिखना है अगर प्रॉब्लम में ऐसा होता. नाउ ये दो लॉट फॉर्मूला तो आपको समझ गया होगा. फर्स्ट लॉट वहां पे मैंने क्या बोला फिर से रिपीट कर रहा हूँ. ओके. बोर तो नहीं हो रहे होंगे क्योंकि बहुत लेंथी प्रॉब्लम है तभी तो मार्क्स मिलता है. फर्स्ट लॉट क्या है डेटर एज पर ट्रायल बैलेंस लेस और एनी अदर एडजस्टमेंट लेस बैड डेट न्यू लेस RTD न्यू लेस RFDD न्यू. to give second effect of that bad debt and RTD. This is second lot formula to bad debt old add bad debt new add RTD new less RTD old.
टू गिव थर्ड टू अप्लाई RFDD फॉर्मूला, अगर RFDD दिया होता तो हियर इज वन मोर फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड थर्ड लॉट फॉर्मूला, जो कि इस प्रॉब्लम में नहीं है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा इसके दोनों इफेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। देख लो, बैड डेट 2002 इफेक्ट, लेस फ्रॉम डेटर एंड इधर भी दिखता है, देन 5% RDD, this is also over to effect, that means this problem is completely over. Now how to close all this account? Trading account, profit and loss account, partners capital account और बैलेंस शीट, क्लोजिंग इफेक्ट देने जा रहा हूँ, ध्यान देना, ओके। और दिल थाम के बैठना। अभी तक आपने बराबर ध्यान से लेक्चर सुना है, अभी लास्ट का स्टेप्स है, ओके। फर्स्ट आपको चेक करने का है क्या सभी फिगर आपने आफ्टर कॉलम में ले ली है, यस, बट ये अभी तक गया नहीं है, तो 60,000 माइनस डैश अगेन 60,000, ओके। नाउ क्लोजिंग इफेक्ट, पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया है, अभी हम क्लोजिंग इफेक्ट, व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये यहाँ का रिक्वायरमेंट होता है, लिखा होता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। तो स्टार्ट कर रहा हूँ। जनरली which side is heavy in trading account, credit side is heavy, तो देख लो 60,000 plus 30,000 90,000 क्लोज करना सिखा रहा हूँ, और ध्यान से देखना, जो कि आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। नाउ दिस इज 90,000, which side is heavy, अगर आप ध्यान से कंपेयर करो which side is heavy, credit side is heavy, तो उसका पहले टोटल किया, देन सेम फिगर यहाँ पे लिखा है 90,000, ओके, बिकॉज़ दिस साइड इज हेवी। 90,000 माइनस दिस, छोटे बच्चे जैसा माइनस करते मत बैठो, कुछ स्टूडेंट इसका टोटल करते हैं फिर माइनस करते हैं, ऐसा नहीं करता है। हाउ टू फाइंड आउट डिफरेंस, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ओके। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस हाउ मच 0 0 0 0 0 प्लस हाउ मच 0 प्लस, बोल रहा हूँ प्लस, माइनस नहीं कर रहा, प्लस मेथड से डिफरेंस निकाल रहा हूँ। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस हाउ मच 0 0, नाउ सी दैट 0 फोर्थ डिजिट 1 2 3 4 डिजिट, 0 plus 0 plus 6, 6 plus 3 9, 9 plus how much is 0, 9 plus how much is 0, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, माइनस नहीं करना है, तो आप बोलेंगे 9 plus 1 करते हैं, then you get 10, in that 10 unit place is 0, तो yes your answer is 9 plus 1 is 10, 0 कैरी कितना होगा बोलो 1, तो आपको ये 1 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, समझ आ रहा है। 6 plus 3 9 plus 1 10, 0 बैलेंस 1, 2 plus 1 3, 3 plus 3 6, 6 ये कौन सा डिजिट है, फिफ्थ डिजिट है, 3 plus 3 6, 6 plus how much is 9, तो 6 plus 3 is 9, 31,000 is difference। ये डिफरेंस कैसे निकाला, प्लस मेथड से, वेरी सिंपल मेथड है, ओके। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका टोटल करते हैं और रफ पेज पे कोपचे में जाके 90 में से माइनस करते हैं और फिर 31,000 आता है, दैट इज लेंथी प्रोसीजर। And this is called, all of you know that this is called gross profit, इसको क्या बोलते हैं, gross profit carried down। Now this gross profit is called credit balance। Now objective type question, अगर fill in the blanks में आता है credit balance in trading account is called, तो कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं क्रेडिट बैलेंस मींस क्रेडिट साइड में डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं, ऐसा नहीं है। क्रेडिट बैलेंस मींस डिफरेंस इज ऑन डेबिट साइड, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस, because credit balance in trading account is called what, gross profit। why it is called credit balance, because you get this balance because of credit side heavy, credit side heavy होने के कारण ये बैलेंस मिला, that's why this balance is called credit balance। तो credit balance is ultimately transferred to dash account, which account, profit and loss account, so you transfer this gross profit here, gross profit brought down, how much, 31,000। Again find out difference here, so whatever the difference here on debit side, this is called net profit, अगर इधर difference आया तो this is called net loss। Similarly here difference is on debit side, so this is called gross profit, this difference may be on credit side, अगर इधर आता तो इसको क्या बोलते हैं, gross loss। gross profit is credited to profit and loss account and gross loss is debited to profit and loss account, okay। लेकिन यहाँ पे gross profit आया, again check करो which side is heavy, अगर आप कंपेयर करेंगे तो credit side is heavy, so this is what, 36,500, this is 36,500। now again you find out difference and this difference is called net profit, ध्यान देना,
लास्ट ईयर आप ऐसा ही करते थे सब लोग, बट हियर नेट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर, बिकॉज इन द क्वेश्चन में लिखा गया है नेट प्रॉफिट इज, क्या लिखा है देखो, श्रीराम एंड श्रीधर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. इन द absence of partnership condition always profit and losses to be shared by partners equally. मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर पार्टनरशिप डीड में अगर नहीं भी लिखा होता है तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि पार्टनर्स हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. लेकिन एवरी प्रॉब्लम में इक्वली लिखा नहीं होगा, देयर में भी 2:3, 3:5 ऐसा कुछ भी रेशियो दे सकते हैं, जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे. बट हियर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल हो रहा है. ओके, नाउ अगेन यू हैव टू फाइंड नेट प्रॉफिट और उसको क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का है. समझ में आया? तो चलो देखते हैं. अगेन यू फाइंड आउट डिफरेंस. वापस रिपीट कर रहा हूं. फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं सब बता रहा हूं स्टेप. 0 0 0 0 0 0 0 प्लस हाउ मच इज 0 0 0 0 0 सेकंड डिजिट. कॉन्सेंट्रेट करना, ध्यान देना, जूम करके देखना. 0 प्लस 0 इज 0. पॉज करके जूम करके देखना. ओके, बिकॉज़ ये वीडियो लेक्चर है. नाउ 5 प्लस 5 is 10, 10 plus 5 is 15, 15 plus how much is 5? So 15 plus 0 is 15, balance carry 1, 3 plus 1 4, 4 plus 2 6, 6 plus 7 बोलो 13, 13 plus 4 17, 17 plus 3 20, 20 plus 2 22, 22 plus how much is 6? मैं ऐसा पूछ रहा हूँ 22 प्लस हाउ मच इज 6, ऐसा पूछ रहा हूँ. तो आप 22 में कितना ऐड करेंगे तो 6 दिखेगा, माइनस नहीं बोलना. तो 22 प्लस 4 इज 26 का 6 आएगा, तो 4 वी राइट हियर. तो 22 प्लस 4 इज 26, बैलेंस कैरी 2. नाउ 2 प्लस 1 इज 3, तो ये 3 दिखता है, तो डिफरेंस इज 4000. दिस नेट प्रॉफिट इज 4000. स्वीट फिगर आया 4000. This 4000 is distributed among these two partner. बोला ऐसा, श्रीराम, श्रीधर, and they are equal partner, 1:1. 4000 is distributed among these two partner equally. 2000 distribute किया. This net profit is transferred to this side by net profit brought down. लास्ट ईयर में आप यही कर रहे थे, कैपिटल, ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस ड्राइंग, बट दिस इज पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, दैट्स व्हाई कॉलमनर कॉलम है. ओके, नाउ 2000 इज द नेट प्रॉफिट. हियर वी राइट 2000 एंड 2000. सबको समझ में आ रहा होगा, एकदम परफेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, हाउ टू क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कॉलमनर कॉलम है, देखो बराबर श्रीराम, श्रीराम. तो फर्स्ट यू हैव टू चेक व्हिच साइड इज हैवी. तो आपने देखा दिस साइड क्रेडिट साइड इज हैवी. 40000 प्लस 2000 प्लस 2000 राउंड फिगर है, आराम से बोल सकते हो. दिस इज 44000. क्रेडिट साइड हैवी है, तो क्रेडिट साइड का टोटल पहले लिखो. हिंदी इंग्लिश लेक्चर ले रहा हूं, बराबर ध्यान से समझना, सबको समझ में आ रहा होगा. क्रेडिट साइड हैवी है, क्रेडिट साइड का फिगर लिखा 44000 माइनस 2000. 44 minus 2000, 42000. Then you have to close Sridhar account. See that Sridhar also credit side is having 30,000 plus 1,500 plus 2,000, total simple figure है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. This is become 33,500. बराबर करो, मैं सारा सबको 5, 3 and 3. 33,500, 33,500 minus 3,000. ओके, अब डायरेक्टली कर सकते हैं. अगर ये बहुत सारा बड़े फिगर होते हैं तो हम लोग किस तरह डिफरेंस निकालते हैं, मैंने आपको सिखाया. 33,000 minus 3,000, that is only 30,500. तो डायरेक्टली कर सकता है कोई भी. ओके, दिस इज ट्रांसफर टू बैलेंस शीट. नाउ अगेन रिपीट करो. दिस डिफरेंस इज कॉल्ड व्हिच बैलेंस? डेबिट बैलेंस बोलेंगे कि क्रेडिट बैलेंस? दिखता है डेबिट साइड में, बट दिस इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस. So what is your objective question? Credit balance in profit and loss account is called dash net profit. This is also which balance? Credit balance. So this credit balance in partners capital account is transferred to credit side of balance sheet. But credit side of balance sheet के बदले हम क्या बोलते हैं? Liability side. So this credit balance is transferred to liability side. Sriram 42,000 is the final balance and this is 30,500.
so that this is 72,500. That's why this method is called fluctuating capital method. Here opening balance is 40,000 and 30,000, but after this adjustment, now this balance, closing balance is become 42,000 and 30,500. So that's why this is called fluctuating capital method. Now you have to close this balance sheet. Before closing, you have to check all this amount. क्या आपने आउटर कॉलम में ले लिया, बराबर चेक करने का। देख लो यहाँ पे फर्नीचर, क्या फर्नीचर के ऊपर भी एडजस्टमेंट था? देख लो, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी, लेकिन देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे डॉट नहीं था, तो वो हम आउटर कॉलम में लिख सकते हैं उसको। तो 16,000 में इधर से यहाँ पे लिखता हूँ, कोई एडजस्टमेंट नहीं था। ओके, यहाँ पे हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं, बाय मिस्टेक हमने इनर कॉलम में लिखा था। नाउ जस्ट क्लोज दिस, टोटलिंग करेंगे एंड दिस अकाउंट मस्ट टैली। ओके, टोटलिंग करने के लिए आता है सबको, आराम से टोटल करके देख सकते हो। व्हाट इज द टोटल? मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, टोटल तो होने ही वाला है। ओके, और टैली होने ही वाला है। द टोटल फिगर, टोटलिंग फिगर इज 1,23,000। इस स्टेप में यहाँ पे आप ओके, ये टैली होना चाहिए। ये जब भी टोटल करते रहते हैं, दिल धड़धड़ करता है कि मेरा टोटल होगा कि नहीं, टैली होगा कि नहीं, वो ध्यान से करना है। ओके, 15 मार्क्स का प्रॉब्लम है फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये लेक्चर कितना भी लेंदी होगा, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरह समझने का, क्योंकि अकाउंट्स का लेक्चर है और ये फाइनल अकाउंट टॉपिक का नाम है। तो नेचुरली ये इसमें आपको ये 4 अकाउंट जो स्पेशल है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस साल स्पेशल आपको मैंने सिखाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड इफेक्ट इन द बैलेंस शीट, आपको किस तरह से देने का है। मुझे ऐसा लगता है कि आज का लेक्चर आपको परफेक्ट समझा होगा। जिसको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट नहीं समझता है, तो ये लेक्चर को ध्यान से, इस वीडियो को ध्यान से पॉज कर करके देखिए। हमने जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया है, जो क्वेश्चन दिया है, उसको भी बराबर पढ़िए, और प्लस एक गाइडलाइन फॉर फाइनल अकाउंट का एक नोट्स दिया है, इवन तो पीडीएफ फाइल भी दिया है, उसको भी आप ध्यान से पढ़िए, तो आपको परफेक्ट समझ जाएगा। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, आपको